afternoon, guys. Hope you people are fine. As usual, we are once more with another lecture. Today's lecture is related to figures of speech once more. It's figures of speech part 3, right? So, before we start, it would be appropriate to introduce myself. As you people know, previously we have been doing a lot of activity, literary activity, and we have been delivering lectures from Shafiq Academy. I am Shafiqur Rahman, and today we are going to do with figures of speech, and today's topic is imagery. Today's figures of speech is imagery. So boys, आज का जो हमारा टॉपिक है ये इमेजरी है, ठीक है, और इसका हम यूजेज देखेंगे और डेफिनेशन देखेंगे कि क्या है, और उसके बाद फिर हम इसके फंक्शन को देखेंगे और इसकी एग्जांपल्स को देखेंगे। ये थोड़ी सी स्पेस कम थी, फिर इसकी एग्जांपल मैंने यहाँ पे आगे कोट कर दिए जो लास्ट लाइन थी यहाँ से। तो लेट्स स्टार्ट today's today's lecture. It is regarding imagery. So imagery is also one of the figures of speech, right? So it is used by the poets, writers and essayists to enrich their writings, right? The purpose is to enrich their writings, right? So it's basically an effort to produce a pen picture into the minds of the readers. तो बच्चों इसमें राइटर क्या करते हैं या पोएट क्या करते हैं कि वो कोशिश करते हैं कि एक पेन पिक्चर जो है वो ड्रॉ करें, ठीक है, एक तस्वीर कशी करें अपने कलम से, जिसका इमेज जो है वो राइटर रीडर्स के जो माइंड्स में है वो बने, ठीक है। तो बेसिकली वो एक इमेज बिल्डिंग एफर्ट कर रहे होते हैं। उनका पर्पस ये होता है कि वो एक इमेज क्रिएट करें, ठीक है, थ्रू देयर पेन, राइट, इनटू द माइंड्स ऑफ देयर रीडर्स, ठीक है। तो ये पर्पस होता है पेन पिक्चरिंग, इसको हम कहते हैं, into the minds of the readers. Though through this pen picture we possibly draw an image into our minds, right? तो हमारे माइंड्स में, हमारे जहनों में जैसे ही हम उस पिक्चर को देखते हैं तो वो एक इमेज हमारे माइंड में ड्रॉ होना शुरू हो जाता है। So images school of thought was basically introduced by Hallman in almost at the start of the 20th century, around about 1900 or 1901, and the poets Ezra Pound and T.S. Eliot, they are the famous poets or writers of the Images school of thought, right? लेकिन इससे पहले एक एफर्ट जो है वो ये हो चुकी थी। एल्फ्रेड टेनिसन इज आल्सो फ्रॉम पॉसिबली फ्रॉम इमेजेस स्कूल ऑफ थॉट, ठीक है। तो हम उसको इस तरह जो है वो देखते हैं, इमेजेस school of thought। तो हलमेन, maybe William Hallman was the pioneer of this school of thought, and later on T.S. Eliot and Ezra Pound, right?
And then in the Alfred Tennyson, at the later part of the 19th century, had also been using this technique. And after that, before that, in the Romantic, right, in the later part of the 19th century, right, 1850 onwards, Wordsworth and Coleridge, they have also been using this technique very successfully, especially T.S. Eliot, S.T. Coleridge was very successful. I previously have mentioned also S.T. Coleridge, T.S. Eliot rather. It is S.T. Coleridge and William Wordsworth who are the pioneer of the Romantic movement, of the Romantic school of thought. So they also have used this technique very successfully in their writings, right? And Wordsworth and Coleridge both have successfully and skillfully handled and used this technique, right? Wordsworth, Coleridge with its supernatural effects, and Wordsworth with its benign, sympathetic and kind effects, right? So they have been using nature basically, right, as a tool of imagery. So that has been very successful. Now this is modern technique, Images School of Thought. They have been doing on modern techniques, right? They took a step forward and used a lot of modern terms and techniques as well, right? So students, what is the function of this imagery in the use of writings? So mostly this pen picturing provides the setting for the subject of our writing. तो वो जो पोइट्री लिखी जा रही होती है, ये जो एक फर्ज करें अगर राइम ऑफ एंशिएंट मैरिनर है एस.टी. कॉलरिज की, ठीक है, तो उसमें वो जो राइम ऑफ एंशिएंट मैरिनर और वो सी में उनकी जो ट्रैवल है और एल्बेट्रॉस का और जो मैरिनर की कंडीशन है, all those things they are based on imagery. They create some sort of picture in our minds, whatever the conditions they had after the mariner killed the albatross, right, and what happened afterwards, all those things they are related to imagery, right? So what the poet and the writers tries to maintain, mostly this pen picturing provides the setting for the subject of our writings. Okay, what are the examples then? I have quoted here two examples, but Paradise Lost, right? Milton's Paradise Lost is also the best example of imagery, as he has tried to create the pictures, pen pictures of the hell and the heaven, right? And of the Saturn and of Adam and Eve, right? So ये एक सारी जो पैराडाइज लास्ट है मिल्टन की एक लॉन्ग नैरेटिव एपिक है, पोएम है, उसमें जो सारी पिक्चर्स क्रिएट की गई हैं, दे आर आल्सो बेसिकली इमेजरी, राइट? So woods are lovely, deep and dark. This is again from Robert Frost's poem Stopping by Woods on a Snowy Evening, right? Robert Frost is also one of the greatest poets who have used imagery in his poems as well, right? So woods are lovely, deep and dark. और ये रॉबर्ट फ्रॉस्ट की है, ठीक है? Stopping by woods on a snowy evening. और ये जो है, ये कहां से है? ये बच्चों वर्ड्सवर्थ की पोएम है, विलियम वर्ड्सवर्थ, ठीक है? ये उसकी पोएम डैफोडिल्स से है और ये स्टार्ट है डैफोडिल्स का. I wandered lonely as a cloud
that floats on high over vales and hills. When all at once I saw a crowd, a host of golden daffodils beside the lake, beneath the trees, fluttering and dancing in the breeze. Right? तो बच्चों ये जो एग्जाम्पल्स हैं ये बेस्ट एग्जाम्पल्स हैं. आपने फर्दर जो है वो अगर इनको सॉर्ट आउट करना है तो जो रोमांटिक पोइट्स हैं, ठीक है, उनकी पोइट्री में से आप देख लें, कीट्स है, शेले है, बायरन है, लॉर्ड बायरन, ठीक है, इन सब की पोइट्री में आपको, उसके अलावा वर्ड्सवर्थ, एस टी कॉलरिज, रॉबर्ट फ्रॉस्ट, इन सब की पोइट्री में आपको जो यूज ऑफ इमेजरी है ये बहुत ज़्यादा मिलेगा, क्योंकि दे हैव प्रोवाइडेड विद द सेटिंग्स, विद द नेचुरल सेटिंग्स एंड एट टाइम्स विद द स्पेशल सॉर्ट ऑफ सेटिंग्स, राइट, थ्रू देयर पेन्स विच द रीडर्स क्रिएट इन देयर माइंड्स. वो एक इमेज ड्रॉ करते हैं अपने माइंड में, सो दैट इज कॉल्ड एज इमेजरी. तो दैट्स ऑल विद टुडेज लेक्चर. बच्चों आज के लेक्चर में हमने चीजें डिस्कस की. फिगर्स ऑफ स्पीच पार्ट 3, राइट, इमेजरी, राइट, हमने उसका जो है वो इम्पोर्टेंस देखी, उसका यूजेज देखा और उसकी डेफिनेशन देखी. फिर उसके बाद हमने उसका फंक्शन देखा और उसके बाद हमने एग्जांपल्स देखी. ये सारी चीजें जो हैं ये इम्पोर्टेंट हैं इस फिगर ऑफ स्पीच को या पोएटिक डिवाइस को समझने के लिए. तो आई बिलीव एक आइडिया आपको हो गया होगा. फर्दर अगर आपने इस कॉन्सेप्ट को स्ट्रॉन्ग करना है, यू मे आस्क मी, राइट, एनी टाइम इन द कमेंट्स बॉक्स. I will welcome all of your comments and will try to satisfy your queries. जब भी आप इसको देखें, इसको पढ़ें और उसके बाद जो पार्ट 1 में हमने यहाँ पे मेटाफर, सिमिली मेटाफर डिस्कस किए थे और पार्ट 2 में हमने पर्सोनिफिकेशन डिस्कस की थी और आज हमने इसमें इमेजरी को डिस्कस किया है. तो इन्हें एक सीक्वेंस में आप दोबारा से अगर चाहें तो वीडियोस को देख लें. इंशाल्लाह आपका बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट जो है वो डेवलप होगा और चीज़ें आसान वे में, इजी अंडरस्टैंडेबल वे में कन्वे करने की कोशिश की गई है. आई होप कि इंशाल्लाह आपका ये कॉन्सेप्ट फॉरएवर माइंड्स में रहेगा. एक और चीज़ याद रखें कि हम कोशिश करते हैं कि जो चीज़ें हैं वो आपके फिंगर टिप्स पे आ जाएं, ठीक है, कि आपको हर दफ़ा जो है वो रट्टे की तरफ या क्रैमिंग की तरफ ना जाना पड़े. यू जस्ट हैव अ फ्लैश ऑफ एवरीथिंग इन योर माइंड, ठीक है. तो वो जस्ट आप एक रिमाइंडर, एक रिकॉलिंग प्रोसेस से गुजरें और वो चीज़ आपके फिंगर टिप्स पे सामने आ जाए. तो एक फॉर्मूला ड्रॉ कर लिया करें, जिस तरह मैथमेटिक्स में होता है या साइंसेस में होते हैं, इसी तरह कोशिश करें कि लर्निंग का हर इंसान का, हर बच्चे का एक अपना स्टाइल होता है. तो उससे वो बेहतर तरीके से चीज़ों को जो है वो करने की पोजीशन में होता है. तो वही उसका जो है वो असल में लर्निंग पॉइंट होता है और वही चूंकि उसके साथ एसोसिएट होता है, अटैच होता है, तो वो उससे कंफर्टेबली चीज़ों को कर सकता है. तो बच्चों आज के लेक्चर से हम जो है वो इजाज़त चाहेंगे. आज हमने इमेजरी की, उसका फंक्शन किया, एग्जाम्पल्स की. इन सब को बेशक आप अगर अपने नोट्स में करना चाहें तो दोबारा से आप इन्हें देख के कर सकते हैं और अपनी एग्जाम्पल्स कहीं शॉर्ट क्वेश्चंस में आ जाए, लॉन्ग क्वेश्चन में आ जाए या BS लेवल पे जो स्टडीज हैं आपकी लिटरेचर की, अगर वहाँ पे कहीं आ जाए तो वहाँ पे भी आप इसको कर सकते हैं. मास्टर्स इसलिए नहीं कहूँगा कि वो 2 ईयर प्रोग्राम था, दैट हैज बीन नो finished, vanished, right, from the screen. So BS जो है उसमें कहीं आपको किसी सेमेस्टर में ये अगर चाहिए हो तो it can be very helpful for you people. And if you want to understand or want to know about something regarding some further topics, आप इसके अलावा कुछ करना चाहते हैं, कुछ समझना चाहते हैं किसी टॉपिक के ऊपर, आप मुझे कमेंट्स में वो टॉपिक मेंशन कर सकते हैं. कोशिश करेंगे कि उसके ऊपर भी एक अच्छा सा लेक्चर
बना सकें। तो आज की वीडियो से इतना ही, इजाज़त दें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो तक हम फिर हाजिर होंगे। उस वक्त तक अल्लाह हाफिज़।